Hello guys, again you are welcome to my channel Literature Classes. This is Abhilasha. Guys, today I am going to discuss a very important topic for all the aspirants of English literature, that is narrative technique and structure. What is the narrative technique? Technique means style. What is the narrative style of a writer when he or she is writing a novel or a play, or you can say a story, short story, or a novella? So there are some important points that we should understand, and they will help us to improve our narrative technique, to improve our narrative style. And we should know the structure. How can a plot, or how can a narrative be good and rich in style? So there are some important points I had written down. So, these points I will explain. So, without doing a further delay, let's get started. First of all, we should understand what is the meaning of narrative. So, guys, what is narrative actually? Narrative is also called a story. Story means kahani. So a narrative is also called a story. Technique means style, and structure means framework, और you can say ढांचा, संरचना. किसी चीज़ की संरचना बनाई जाती है. पहले जब हम कोई काम करने चलते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उसका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसका एक मैप तैयार करते हैं. सो किस तरीके से हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए. सो narrative structure. What is narrative structure? I told you what is narrative and what is technique means. Narrative structure, it is a literary element, and this describes a structural framework of a narrative. Narrative means story. It is a literary element. You know very well that this narrative structure is a literary element, and this describes a structural framework. Means in this narrative structure, we see that there is a structural framework of a narrative we should make. एक नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है, किसी भी नैरेटिव का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, एक मैप होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा एक नैरेटिव को फ्रेम किया जाता है. The narrative structure consists order and manner in which a narrative is presented to a reader, listener, or viewer. Narrative structure consists order and manner. Order and manner means the style consists order and manner. किस तरीके से ऑर्डर मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है कि फर्स्ट पॉइंट ये होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा, थर्ड पॉइंट ये होगा. ये क्या है, एक ऑर्डर है और एक मैनर है, स्टाइल है कि इस तरीके से एक नैरेटिव को लिखा जाता है. इन विच अ नैरेटिव इज प्रेजेंटेड टू अ रीडर, लिसनर, और अ व्यूअर. इज प्रेजेंटेड टू अ रीडर मीन्स नैरेटिव इज रिटन and it is presented before a reader. If this narrative is a play, so that play is presented before the audience, viewers. Okay, so the narrative structure consists order and manner in which a narrative is presented before reader, listener, or viewer. Narrative techniques provides deeper meaning for the reader and help the reader use imagination to visualize situations. Common techniques relevant to plot is the sequence of events that makes up a narrative, including introduction of characters, backstory, flashback, flash forward, and foreshadowing. Common techniques relevant to narrative perspective, or who is telling the story, or includes first person, second person, third person, and third person omniscient. So narrative techniques provides deeper meaning. Means if we talk about the style of a narrative, if we talk about the style of a story, so it provides a deeper meaning. Means it is not only it is not have any surface meaning,
there is a deeper meaning for the reader and help the reader to use imagination. The reader use imagination to visualize situation when he or she is watching that story, or he or she listening that story, or you can say he or she is reading that story. That time the reader will visualize the situations. He can imagine that situation. How? That this शुड बी ए स्टाइल ऑफ अ नैरेटिव. ऐसा स्टाइल होना चाहिए जिससे कि रीडर जब वो देख रहा हो या पढ़ रहा हो या सुन रहा हो उस समय वो उस चीज़ को विजुअलाइज कर सके, अपनी उसकी आंखों में वो सीन दिखे, उसको वो उस चीज़ को इमेजिन कर पाए. पढ़ने से उसको वो चीज़ें इमेजिन हो जाएं. ऐसा नैरेटिव टेक्निक इस्तेमाल किया जाना चाहिए राइटर के द्वारा और नॉवलिस्ट के द्वारा. कॉमन टेक्निक्स रेलेवेंट टू प्लॉट मीन्स जो प्लॉट की कॉमन टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप नैरेटिव इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. मतलब जो नैरेटिव होता है उसका जो प्लॉट है उस प्लॉट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स रेलेवेंट होती है कि उसका एक ऑर्डर होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए इवेंट्स का. जो प्लॉट है वो क्या होना चाहिए? एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसके इवेंट्स दिखाए जाने चाहिए. कैरेक्टर का जैसे कि कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन पहले आता है, बैक स्टोरी दिखाते हैं, फ्लैशबैक दिखाते हैं, फ्लैश फॉरवर्ड दिखाते हैं, फोर शैडोइंग. ये क्या है? मतलब कैसे एक नैरेटिव स्टार्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, देन सिचुएशन, बैक स्टोरी विच इज बेस्ड ऑन विच द स्टोरी इज बेस्ड. बैक स्टोरी दिखाएंगे कि ये हुआ था पहले, उसी के आगे ये चीज़ें होने वाली हैं. तो जो बैक स्टोरी है, फ्लैश बैक पे जाते हैं, फ्लैश फॉरवर्ड, फोर शैडोइंग, ये मतलब ये सारे एक स्टाइल है प्लॉट का. कॉमन टेक्निक्स रेलेवेंट टू नैरेटिव perspective or who is telling the story or includes first person, second person, third person and third person omniscient. जो कॉमन टेक्निक्स है नैरेटिव पर्सपेक्टिव की कि उसने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन ऑमनिशियंट होना चाहिए. ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ये क्या है? ये नैरेटिव टेक्निक जो है किसकी? नैरेटिव पर्सपेक्टिव की टेक्निक है. ठीक है, कुछ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स that a writer or a novelist should follow. So these are some 7 or 8 points. We should discuss it also in detail. So see these important points for to make a good narrative. Plot construction. Very first point is plot construction. Second is characterization. Third is theme and setting. Fourth point, self detachment. Fifth, action, then conflict, then dialogues and soliloquy. At last, we should also use a conclusion. So, very first point is plot construction. What is this plot construction? It is the basic need of the function of a novel. A novelist should keep the balance between character actions. The plot of a novel should be well knit by main plots and subplots, and even should be in sequential order. Plot construction. Plot का construction कैसा होना चाहिए? It is the basic need of the function of a novel. Means this plot construction is the major point of a novel on which the whole novel is based. Plot construction is very, very, very important point of the narrative technique, or you can say of a novel. So that should be very good. How? It is the basic need of the function of a novel. A novelist should keep the balance. एक जो नॉवलिस्ट है वो जब नॉवल को लिखता है या प्लॉट को लिखता है, स्टोरी को लिखता है, तो उसका क्या है? बैलेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड एक्शंस. कैरेक्टर और एक्शन के बीच में बैलेंस होना चाहिए. कभी भी कैरेक्टर कुछ भी नहीं कहेगा. बैलेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड एक्शंस. कैरेक्टर की एक्शन कैसे हैं उनका एक बैलेंस होना चाहिए. कैरेक्टर और एक्शन के बीच में क्या है? बैलेंस बना के चलना है. उसको ऐसे करना है कि जो कैरेक्टर है वो किस तरह के एक्शन कर रहा है और कब कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर कब आ रहा है और कब वो कौन सा एक्ट कर रहा है.
मेजर कैरेक्टर जो है, प्रोटैगनिस्ट जो है, उसका क्या एक्शन है, जो माइनर कैरेक्टर है वो कहाँ पे रोल कर रहे हैं. दैट शुड बी अ प्लॉट कंस्ट्रक्शन. दिस टाइप शुड बी अ प्लॉट कंस्ट्रक्शन. द प्लॉट ऑफ अ नॉवल शुड बी वेल नीट. वेल नीट मतलब क्या है, मेन प्लॉट जो है और सब प्लॉट जो है, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉट, मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट. सो मेन प्लॉट और सब प्लॉट के बीच में भी एक बैलेंस होना चाहिए. मेन प्लॉट कहाँ पे डाल रहे हैं और सब प्लॉट कहाँ पे डाल रहे हैं, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए. जब मेन प्लॉट स्टार्ट हो तो हमें ये पता चले कि ये स्टोरी मेन है, और उसके बाद में वो कब स्टार्ट हो जाता है सब प्लॉट से, ये भी मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, एक रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में. एंड द इवेंट शुड बी इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. वेरी चीफ क्वालिटी ऑफ अ प्लॉट इज इवेंट शुड बी इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. इवेंट्स कैसे होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए. दैट शुड बी अ मैनर ऑफ द प्लॉट. आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑफ प्लॉट ऑल्सो, यू शुड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन. ओके, अ नॉवलिस्ट शुड use appropriate amount of characters. If there will be lots of characters or less than the need, the novelist won't be able to complete his narrative. Characterization. Characterization means character portrayal. The novelist should use appropriate amount of characters, means there should not be so much characters, means lots of characters, or not less than characters. किसी किसी नॉवेल्स में आपने देखा होगा एक या दो ही कैरेक्टर होते हैं, किसी में एक ही होता है. जैसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जो नॉवेल्स हैं उसमें देखिए बहुत कम कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है. ओके, सो द नॉवलिस्ट वोंट बी एबल टू कंप्लीट हिज नैरेटिव. अगर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो भी क्या होगी, स्टोरी बहुत अच्छी नहीं होगी, और बहुत कम कैरेक्टर्स होंगे तो भी नैरेटिव अच्छा नहीं होगा. कभी कभी क्या होता है, रीडर्स जो है बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हो जाते हैं तो रीडर क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कब आ रहा है. वो आधा तो भूल भी जाते हैं, पहले का भूल जाते हैं, बाद का याद रखते हैं. तो ऐसे कैरेक्टर्स इतने होने चाहिए कि नॉवल जो रीडर है या जो व्यूअर है या यू कैन से ऑडियंस है, वो ये समझ पाए, वो ये याद रख पाए कि कितने कैरेक्टर्स हैं. बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो. एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द कैरेक्टर शुड बी यूज्ड. कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, मेजर कैरेक्टर्स कितने हैं, माइनर कैरेक्टर्स कितने हैं, कौन से कैरेक्टर्स का क्या रोल है, दैट शुड बी ऑल्सो कीप इन माइंड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थीम एंड सेटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थीम of a novel or of a narrative. The appropriate idea of a novel or story, the background in which the story takes place. There are several aspects to setting, place, time, climate and lifestyle. Theme and setting. क्या है theme? Theme means a central idea of a novel or a story. Theme on which the novel is based. एक आइडिया होता है जिस पे क्या है, पूरी स्टोरी बेस्ड होती है. सो वो एक अप्रोप्रिएट आइडिया उस स्टोरी में दिखना चाहिए, उस नैरेटिव में वो पता चलना चाहिए. द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस मीन्स दिस इज द सेटिंग. सेटिंग कैसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. जहाँ पे स्टोरी हैपन होती है, मतलब जहाँ पे स्टोरी चल रही है, जिस प्लेस पे चल रही है, देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग. प्लेस होना चाहिए, उसका क्लाइमेट उसी तरीके का होना चाहिए. मान लीजिए आपने चंडीगढ़ का सीन दिखाया या आपने बॉम्बे का सीन दिखाया, तो उसी वही क्लाइमेट भी आप दिखाएंगे, वही वेदर दिखाएंगे. लाइफस्टाइल भी वहाँ की वही होनी चाहिए, वही लाइफस्टाइल, उन कैरेक्टर्स जो उसमें रोल प्ले करेंगे उनकी वही लाइफस्टाइल होनी चाहिए. दैट शुड बी अ सेटिंग एंड थीम ऑफ द नैरेटिव. Next important point is self-detachment. This is also a very important point of a narrative. A writer should keep in mind a thing that he has to keep himself away from the novel. It should be objective. Meaning is that a writer should keep in mind a thing. क्या होना चाहिए, कैरेक्टर जो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, जो उसमें एक्शंस दिखाए जा रहे हैं, वो ऐसे एक्शंस होने चाहिए जिससे कि ये ना पता चले कि राइटर क्या, कौन सा राइटर क्या लिख रहा है. मीन्स वो नॉवेल टोटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो नैरेटिव टोटली
ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें राइटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रिफ्लेक्ट करना चाहिए. अगर उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट करता है तो दैट विल बी एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल और अ नैरेटिव. if you are writing if you are writing not any autobiographical novel or a narrative, so that should be objective. There should not be any types of idea of a writer or a novelist. The total idea of the total idea which will reflect in the novel or a narrative, that will be of the characters. It should seem like the idea of a character. Next important point is action. What is the action of a narrative? It is a very important point of a novel. To make a good narrative, the action would be united and in order. Action बहुत important point है एक गुड नैरेटिव का. और ये जो है कैसा एक्शन कैसे होना चाहिए, यूनाइटेड होने चाहिए, यूनाइटेड इन एंड इन ऑर्डर, एक सीक्वेंस में होना चाहिए. ये नहीं कि कभी भी कोई एक्शन हो रहा है, कभी भी कोई कैरेक्टर आके कुछ भी कर रहा है, एकदम से कोई कॉमिक सीन चल रहा है उसी बीच में ट्रैजिक सीन दिखा दिया, या कोई ट्रैजिक सीन दिखा दिया उसमें कुछ कैरेक्टर्स हंस रहे हैं तो कुछ रो रहे हैं. दैट शुड नॉट बी देयर. कुछ जो एक्शन है वो एक अच्छा एक्शन, एक नॉवेल में या नैरेटिव में एक अच्छा एक्शन दिखाना है. ओके, ताकि जो नैरेटिव है वो कैसा होना चाहिए, गुड हो जाए. टू मेक अ गुड नैरेटिव, एक्शन वुड बी यूनाइटेड एंड इन ऑर्डर. यूनाइटेड होना चाहिए और इन ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट. The struggle between opposing forces in the story, it provides interest and suspense in the story. Conflict, it is a very important point of the novel or a narrative. It is totally based upon the characters. Conflict क्या है? Conflict एक क्लाइमेक्स है नॉवेल का या नैरेटिव का. एक क्लाइमेक्स होता है कॉन्फ्लिक्ट, जिस पे पूरी स्टोरी बेस्ड होती है. द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस इन द स्टोरी, ये क्या है, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं उसके बीच में एक स्ट्रगल दिखाया जाता है. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब कोई भी कैरेक्टर कुछ करना चाहता है और दूसरी तरफ कोई दूसरा आकर के उसको अपोज करता है कि आपको ये नहीं करना है, या आपको ये पता होता है, उस कैरेक्टर को ये पता होता है कि इसको ये चीज़ नहीं पसंद है और मुझे ये करना है. देन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस. इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड सस्पेंस. अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव में या नॉवेल में नहीं है तो इंटरेस्ट और सस्पेंस नहीं होगा स्टोरी में, एंड दैट विल नॉट बी अ सक्सेसफुल स्टोरी और अ नैरेटिव. सो देयर शुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी. Next is dialogues and soliloquies. There are also have an important position to make a novel impressive. These are also important positions. Means these are also very important point to make a novel impressive and effective. नॉवेल को या नैरेटिव को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए डायलॉग्स भी बहुत अच्छे डायलॉग्स डालने चाहिए. कुछ भी जब कोई भी कैरेक्टर डायलॉग बोले तो उस जो रीडर है या वो जो व्यूअर है उसको पढ़ते ही उसको एक वो हो कि नहीं इस जो नॉवलिस्ट है उसने बहुत अच्छे डायलॉग्स डाले हैं. बहुत कैरेक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा कैसे विटी हैं, बहुत विटी डायलॉग्स बोल रहे हैं ये. ओके, डायलॉग्स एंड soliloquy should be used time to time as per the need of the theme, action and situation. और डायलॉग्स और soliloquy क्या है, should be used time to time means डायलॉग्स जो हैं और soliloquy टाइम टू टाइम नॉवेल में नैरेटिव में दिखने चाहिए, जैसा कि थीम और सिचुएशन जो एक्शन है जैसी वो नीड हो उसमें. ओके, सो दैट द नॉवेल और अ नैरेटिव शुड बी इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव. द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कंक्लूजन. The novelist should give a proper conclusion of a story so that the reader would get a satisfaction after reading and they shall take interest to read other narratives also. नैरेटिव जो लिखा जाना है उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन भी होना चाहिए. विदाउट एनी कंक्लूजन ऑफ अ नॉवल और अ नैरेटिव द स्टोरी विल बी इनकम्प्लीट एंड दैट विल नॉट गिव अ सेटिस्फैक्शन टू द रीडर्स. ओके, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर conclusion of the story and that conclusion will
give the interest to the readers to read more and more stories, to read more and more narratives. So there should be a proper conclusion of a story, of a narrative. So guys, these are important points of narrative technique and structure. I have discussed all the things related to narrative technique and structure. Still you have any queries, any doubts in your mind, please mention it in the comment section below. I will try my best to remove your all problems. That's it for today. I'll meet you very soon with a new video. Till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.